Susnana. Good morning all, dignitaries on the dais. It's my distinct pleasure to introduce our esteemed chief guest for today's project competition and the inaugural function, Mr. Arvind Kumar sir. Arvind Kumar sir is the Center Head of TCS Nagpur. Is a sessional professional with extensive experience in IT industry with the strong background in the leadership and the management. Arvind Kumar sir has been with TCS for the last 30 years. He is responsible for the overall function, providing leadership for business growth, innovation, delivery, administration and operation of TCS Nagpur. During his long association with TCS, he has played multiple roles in technical, managerial, delivery, sales and pre-sales functions and interacted with industries from many countries like USA, UK, Japan, South Africa, Middle East, to name a few. Under his leadership, TCS team has delivered success, brought innovative business models, products and solutions. He is known to nurture his team and realize their potential and develop leaders. He is actively involved in many technical and professional associations and communities. He is in the board of studies and academic senate of many engineering institutes. He has held in the position of vice chairman and subsequently chapter chairman of the Computer Society of India. Similarly, he was vice chairman and subsequently chairman for IEEE Nagpur subsection. Currently, he is the chair industry relations in IEEE Mumbai section. He was also a jury for many years in Tata Innovista, an innovation platform for Tata employees. He has completed his BTech in computer science from IIT BHU Varanasi in 1993. We are fortunate enough to have such a great personality amongst us. And thank you so much. Now I request sir to please kindly speak some word on this occasion. Thank you, ma'am, and thank you, Dr. Leena, for a wonderful introduction. So on this particular occasion, I express my gratitude, first of all, to the Banai officials, respected Engineer Ajay sir, Kobragade sir, Ingale sir, Engineer Pavan, and all the dignitaries who are sitting here. जब डॉक्टर लीना मैम ने मुझे अप्रोच किया कि हाँ सर आप अवेलेबल हैं क्या इस सैटरडे के लिए, एंड मैंने टॉपिक देखा कि हाँ प्रोजेक्ट कंपटीशन है, मैंने इमीडिएटली यस कर दिया. एंड देयर इज अ रीजन व्हाई एक्चुअली आई सेड यस, क्योंकि मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जब हम लोगों ने शुरुआत किया था इंजीनियरिंग करना है, प्रोड्यूसर मेनी ऑफ अस वुड एग्री, हम लोग प्योरली थ्योरी बेस्ड बहुत ज़्यादा करते थे. एक लैब होता था, लॉट ऑफ थ्योरी वाज देयर. प्रोजेक्ट का एक्सपोजर इंजीनियरिंग डिग्री के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे वर्ल्ड में जितने भी नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस जो बने हैं, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप किया है, उन लोगों के पीछे एक मंत्र है. वो मंत्र ये है कि आप अपने हाथों से कितना आप काम कर पाते. जब आपका हाथ चलता है तो दिमाग भी चलता है. That is extremely important. Many of the big companies, even like for example the Facebook, Microsoft, many of those are known companies, Google. If you know, the founders of these companies, they started these companies from a garage. Garage क्या होता है? Garage
वो होता है जहाँ पे घर के जो कबाड़ जो होते हैं उसको रख दिया जाता है, राइट, एक कोने में। एंड उस गराज से वहां पे उन लोगों ने आइडियाज को कंसेप्चुअलाइज किया एंड उसके बाद उसको वर्ल्ड स्केल पे लेकर के चले गए। Even if today, if you go to many of the Western countries, I have been there in US, UK, Japan, many other places, there is still a concept of a garage there. उस गराज में घर का अगर टीवी टूट गया, नहीं चल रहा है, रेडियो पहले था वो ट्रांजिस्टर अगर नहीं चल रहा है, मोबाइल फोन अगर नहीं वर्क हो रहा है, और एनी मैकेनिकल गैजेट ऑल्सो विच इज देयर एंड नॉट वर्किंग, वो गराज में पड़ा हुआ होता है। इवन लाइक फॉर एग्जाम्पल गिटार में आपको शौक है और वो नहीं चल रहा है, वहाँ पे पड़ा होता है। एंड बच्चों को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है गराज, भाई ऑलरेडी टूटा हुआ है, ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बच्चे वहाँ पे गराज में जाते हैं, वो उनकी बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट, राइट, दे कैन एक्सपेरिमेंट। एज आई सेड, हाथ से काम करना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो तोड़ नहीं रहे हैं तो जोड़ना भी नहीं सीखे। डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए प्रोजेक्ट। व्हेन यू आर टेकिंग एनी प्रोजेक्ट, whatever that you have, the use case that you have worked on and you have brought here as a part of this project competition, the very first thing for your project to be successful and get accepted to the other parties, whether it is a jury or if you want to scale it up later on as a product, it is important for you to deconstruct the problem, right? Solution बनाने से पहले प्रॉब्लम को तोड़ने की जरूरत है ना? कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, अगर देखा जाए, उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है तो पहले तोड़ना पड़ेगा। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जब तोड़ देते हैं तो सोल्यूशन अपने आप निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सोल्यूशन डिफरेंट थ्रेड्स जो होता है, छोटे छोटे जो टुकड़े में रहता है, उसको अराउंड सोल्यूशन आप डेवलप करते हो तो एक बड़ा सोल्यूशन भी अपने आप बन जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, deconstructing the problem. When you are able to deconstruct the problem, जब छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, then in that case आपके पास सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा मेथड जो है, for you to develop a right product, a right services and the solution is to learn the strength of others. लाइफ में अगर देखा जाए, हम लोग हर समय कभी न कभी किसी न किसी तरीके से लोन लेते हैं, राइट? बैंक से भी लोन लेते हैं, पढ़ाई के लिए भी लोन लेते हैं, बिजनेस जब शुरू करता है हम जाते हैं लोन लेते हैं, बैंक से जाकर के होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे लोन लेते हैं, पेरेंट्स से लोन लेते हैं, जो भी पैसा मिलता है, राइट? हमारे पास नहीं होता है, हम मांगते हैं जाकर के। व्हाट इज दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ लोनिंग द स्ट्रेंथ? क्योंकि देखो, अपने अलोन जो है यू कैन नॉट डू मेनी थिंग्स, आपको जो है दूसरे से भी मदद मांगनी पड़ेगी। You have to loan the strength from the others. What does that mean? For example, if you are working on a project which relates to the mining industry, right? क्या उस use case mining industry में कुछ automation करना हो या कुछ electronics का gadget develop करना हो, क्या आपने उस mining industry के बारे में पढ़ा क्या? आपने यहाँ पे जैसे for example WCL है, Western Coalfield Mines है, वहाँ की किसी ऑफिसर्स के साथ जाकर के वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, वहाँ पे जो सुपरवाइजर्स हैं, वहाँ से जाकर बात किया कि माइनिंग कैसे काम होता है, क्या तकलीफ होती है उनको, राइट? अगर मान लीजिए आपको जो है फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने कुछ गैजेट्स बनाया, मैंने अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा नहीं है, अगर मान लीजिए फूड इंडस्ट्री से प्रॉब्लम कुछ स्टेटमेंट है, कुछ सोल्यूशंस आप बनाना चाहते हो, क्या आपने जाकर के बुटी और हिन्ना में जाकर के देयर इज अ टी शॉप, there is many other food industry, agriculture industry which is there, क्या आपने वहाँ पे जाकर के उन लोगों से बात की क्या? Did you go and speak to the people who are really working on the shop floor, who are working on the ground, and try to understand that how
they are doing today, what are the issues they are facing, and उसके अराउंड कुछ सोल्यूशन चाहिए क्या, उनकी नीड क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और फॉर एग्जाम्पल आपको जो है कार में इंटरेस्ट है, राइट, lot of people have an interest in the car, but do you understand, have you gone to for example Mahindra and Mahindra, यहाँ पे ट्रैक्टर बनता है, और अशोक लीलैंड जो भंडारा में है, और फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो कार मैकेनिक्स का जो शॉप होता है, वहाँ पे जाकर के आपने समझने की कोशिश किया क्या डिफरेंट थिंग्स विच मेक्स अ कार. दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, राइट. द फर्स्ट स्टेप इज deconstruct the problem. Second step is learning the strength from somebody who is already an expert. whether वो expert एक मैकेनिक है जो अंदर कार के अंदर घुस कर करके उसको ठीक करने की कोशिश करता है, और उसका सुपरवाइजर है, उसको बहुत सारे कार का नॉलेज होगा, चाहे वो इंडिका का, टाटा का कार हो, या मारुति का कार हो, हुंडई का कार हो, या जैगुआर लैंड रोवर का कार हो. डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा वहाँ पे. वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है. एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूज केस फॉर एग्जांपल है, एंड फॉर एग्जांपल आपके दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, मामा मामी, ये लोग अगर सिद्धरी में हैं, खेती करते हैं, क्या आपने उनके पास जाकर के बात किया, क्या देखा, क्या वो खेती कैसे होती है, क्या गैजेट्स यूज होता है, क्या इक्विपमेंट्स यूज होता है, क्या वो taking that particular knowledge, that is what I'm saying is that do you have an ability to learn the strength from the others? You should not hesitate, क्योंकि लाइफ में बढ़ने का रास्ता यही है कि आपके अंदर में ईगोज नहीं होना चाहिए, आपके अंदर में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए. Do you understand what I mean by the egos and hesitation? Egos वो है कि मैं तो बड़ा हो गया, मैं तो जानकार हो गया, मैं इंजीनियर बन गया, अब तो वो बड़े छोटे लोग हैं, राइट, एंड यू आर नॉट टॉकिंग. व्हाट एसेंशियली इट इज क्रिएटिंग इज अ बाउंड्री. एक बाउंड्री क्रिएट हो रहा है आपके पास. मैं अपने TCS ऑफिस में, एंड पीपल नो दैट द मोस्ट एक्सेसिबल पर्सन इन द TCS नागपुर इज अरविंद सर, डिस्पाइट हैविंग a 10,000 people there. ठीक है, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो गार्डनर हो, चाहे वो ऑफिस बॉयज हो, चाहे हमारे जो जूनियर इंजीनियर्स हो, चाहे वो सीनियर लीडर्स हो, सबको पता है कि अरविंद सर कोई असिस्टेंट नहीं रखते हैं बाहर. देयर इज नोबडी हु स्टॉप्स एनीबॉडी टू गेट इनटू माय रूम. क्यों रखना? क्योंकि आज की डेट में अगर अपॉइंटमेंट लेना है, वो MS टीम, आउटलुक पे आप कैलेंडर ब्लॉक कर सकते हैं. क्यों जरूरत है कि कोई एक रोके वहाँ पे जो एंड प्लस में भूखता रहता हूँ. मैं खाना जो खाता हूँ, लंच जो है फूड कोर्ट में करता हूँ, लाइन लगते हैं सभी लोग, मैं भी लाइन में लगता हूँ, वहाँ पे जाकर करके हम लोग खाना लेते हैं, क्योंकि दैट गिव्स मी द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, राइट. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट, राइट. अदरवाइज मुझे पता कैसे चलेगा वो खाना दाल में पानी ज्यादा है कि दाल है? सब्जी में केवल करी है या सब्जी में सब्जी डाला भी है? होता है ना, बहुत सारी दिक्कत होती है ना हॉस्टल्स वगैरह में, बहुत सारी दिक्कत होती है सारा कुछ जो है. तो इफ फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू योर डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, HODs एंड ऑल ऑफ दोस, बोले नहीं मैं तो खाना, मेरा मेस तो बहुत अच्छा है. मैम चलिए साथ में खाना खा लीजिए ना, है कि नहीं? बोलना चाहिए, ऑफर देना चाहिए जो हमें जो है, राइट. दैट इज इम्पॉर्टेंट. learning the strength from the interactions. If I would have egos, I would not know that कि वहाँ पे लोगों के बीच में क्या इश्यूज है, और लोग खुश हैं, वो भी तो मुझे जानना चाहिए ना. अगर लोग खुश हैं, मुझे भी तो खुशी मिलना चाहिए, राइट. मेरा भी हक है खुश होने का, है कि नहीं? सो ईगोस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. यू शुड नॉट हैव दैट. हेजिटेशन. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अभी जस्ट स्टूडेंट्स हैं, राइट. फॉर यू टू ग्रो you need to learn the strength from some of your seniors. Those seniors could be in a family, बड़े भाई, बहन, भाभी, whoever. Or for example, a school and college में teachers, principals. Do you have that confidence to approach your teachers? That's extremely important. Ask this question. There is no question which is a silly question. There is no question which is a dull question. There is no question that is a stupid question. Let me just tell you, my dear friends. कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता है. हम उसको पूछ नहीं पा रहे हैं, हम उसको एज्यूम कर रहे हैं कि कहीं मैं बड़ा छोटा सा तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ,
मैम नाराज तो नहीं हो जाएंगी, राइट, ये सर नाराज तो नहीं हो जाएंगे, ये हमें लगता है। क्या करेंगे, वो नहीं आंसर बताएंगे, बस इतना ही होता है ना, है कोई मारेगा तो नहीं। आज तो कभी मार खाए हो क्या स्कूल, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज में, है इम्पॉसिबल, कभी नहीं कोई मारता, राइट। It is our hesitation that we are not able to approach some of the people who have a bit better knowledge than yourself, right? Don't hesitate. Don't hesitate. Dr. Leena ma'am ने approach किया, right? If she would have hesitated कि हाँ TCS की center head है, मैं आएंगे कि नहीं आएंगे, otherwise I would not have been here. Do you understand? ये hesitation नहीं था, इसलिए उन्होंने approach किया। एंड मैंने 2 दिन के अंदर में, आई थिंक 2 दिन पहले आपने बताया था, राइट, मैंने कहा आऊंगा, ठीक है, सैटरडे, आई डोंट हैव एन अपॉइंटमेंट टुडे, आई विल कम, राइट। आई लव कमिंग एंड इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। द लास्ट पॉइंट व्हिच आई सेड इज द कॉन्फिडेंस, राइट। दीज प्रोजेक्ट्स, बिसाइड्स you demonstrating your technological prowess, what essentially you are demonstrating is your confidence. तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, इंटरव्यू में पास होने के लिए कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। दैट इज व्हाट लॉट ऑफ टाइम पीपल कॉल इट एज अ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल है क्या, बहुत मुश्किल वर्ड है ये, जानते हो ना, समझ में नहीं आती है सॉफ्ट स्किल क्या मतलब होता है, नहीं, ये सॉफ्ट स्किल क्या होता है। सॉफ्ट स्किल प्राइमरली built around your confidence. Many times people misrepresent it as English as the method for a soft skill. It's a communication का method है, एक मीडियम है, इंग्लिश जो है एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, क्योंकि अब हम लोग बाहर की भी दुनिया से, बाहर इंडिया के बाहर भी काम करते हैं और एक लैंग्वेज है जिसमें सब लोग बात कर सकते हैं, वो इंग्लिश है, तो भाई इंग्लिश में बात करना है। अगर कोई हम जापानीज कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं तो भाई इंग्लिश छोड़ के जापानीज में बात करोगे तो ज्यादा खुश होगा बॉस, है। अगर जर्मन कस्टमर के साथ बात कर रहे हो और जर्मन बात करते हो तो ज्यादा खुश होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to understand, essentially we are talking about a confidence, okay, and confidence, for example, let me just give you a few of the examples. आप जब घर में बात करते हो अपनी मम्मी पापा से, भाई बहन से बात करते हो, कभी कोई बोलता है कि आपका सॉफ्ट स्किल खराब है? आस्क दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। कभी किसी ने कहा कि तुम्हारी सॉफ्ट स्किल खराब है? जब अपने आई बाबा मामा मामी किसी से भी बात करते हो, भाई बहन किसी से भी बात करते हो, कभी किसी ने कहा कि सॉफ्ट स्किल खराब है? कभी नहीं कोई करता। अपने दोस्तों के बीच में बात करते हो तो कोई बोलता है कि तुम्हारा सॉफ्ट स्किल खराब है? नहीं कहता ना। तो अचानक ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये सॉफ्ट स्किल्स अचानक तुम्हारा खराब कैसे हो जाता है? रीजन बीइंग इज, आई जस्ट गिव यू दैट, बिकॉज जब घर में बात करते हो, घर की बातें होती है, जो टॉपिक होता है, क्योंकि वो जो टॉपिक जो है, जो सब्जेक्ट जो है, वो नॉन सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जो है नॉन सब्जेक्ट है, राइट। घर से रिलेटेड जो भी चीज होगा वो नॉन सब्जेक्ट है, वहां पे बातें होती है। घर दोस्तों के बीच में मूवी की बातें होंगी, शाहरुख खान की बातें होंगी, काजोल की बातें होंगी, ऐश्वर्या खान के बारे में बातें होंगी, किसी के बारे में बातें होंगी, राइट, है ना। जो भी आलिया भट्ट, आई डू नॉट नो, आई डोंट वॉच लॉट ऑफ मूवीज, है ना। तो इसके बारे में बात होगी, है, और नहीं तो टपरी में चाय पीने जाना है, उसके बारे में बात होगी, राइट। जब वो बातों पे बात होती है तो सॉफ्ट स्किल्स आता है क्या तुम्हारे बीच में? नहीं आता है ना, क्योंकि यू आर टॉकिंग इन ए फैमिलियर जोन, जो टॉपिक पे तुम्हारे दोस्तों के बीच में पता होता है, राइट। जब उस टॉपिक पे बात करते हो तो सॉफ्ट स्किल्स अच्छा होता है। वही चीज तुम्हें you have to gain when you are there, as in your study and as well as when you are trying to get into a corporate or industry as well. What is that common zone? The common zone, for example, if you are coming to TCS, common zone क्या है? Information technology. Common zone क्या है? टाटा की बातें हैं? Common zone यही है ना, right? अगर आप
जो है अगर TCS में, I'm just giving you example, I'm not saying that yes all of you have to work in a TCS, most welcome if you want to, but yes अगर for example आप जाकर के गूगल करो टाटा के बारे में तो एंड जानकारी के बेसिस पे अगर आपको जो है एक जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑल ऑफ यू आर हियर इन नागपुर राइट, अगर मैं पूछूं, कल मैं पूछा था, परसों भी पूछा था, कॉलेज में था, आपको मालूम है कि टाटा का रिलेशन नागपुर से कितना है और क्या है? किसी को भी पता है क्या? यू नो टाटा पता है ना, टाटा की नमक तो आता है ना, आता है ना, वेस्ट एंड जूडियो से कपड़े तो खरीदते होंगे टाटा का, राइट? पता है राइट? नहीं तो वॉच वगैरह कभी टाइटन तने जो भी होता है टाइटनेक्स एक्सेट्रा वो तो देखा होगा राइट, है ना? अच्छा ये बताओ नागपुर का, सिटी ऑफ नागपुर का टाटा से क्या रिलेशन? हाँ बताओ, एंड टेल योर नेम एज वेल. Sir, Rohit Dilip Raut. And Rohit Raut. Rohit Rao. Yes, sir. Sir, actually, this is from your story only. 1 year back, you came to PC, PC अच्छा हाँ ठीक and है. there you told the story. Oh. And actually, it is interesting too. हाँ Like Jamshedji Tata wants to set up its steel factory, which is currently in Jamshedpur. हाँ He checked the first place as Nagpur. Then he went to Chandrapur. Okay, thank you. Please repeat. So Jamshedji Tata came to Nagpur as we have that Empress mill, and that's its own relation with Nagpur for cotton. Now Jamshedji wants to expand its business in steel, so he chose Nagpur. But due to his some reasons, because we don't get that ore which especially he needs, so he went to Chandrapur. As we knew, Chandrapur has more coal reserves, and also fossil fuels also is good in Chandrapur. But still there he don't find that such things. Then he finds the next thing. Right. And you need to understand one thing, Jamshedpur, which is situated, is also known as Chota Nagpur Plateau. So that's something what क्या relations. बात है, क्या बात है. You remember and listen. Just to recap, जब तुम लोग इम्प्रेस मॉल तो जाते हो ना, मूवी बैठ जाओ रोहित. हाँ इम्प्रेस मॉल जाते हो मूवी के लिए, नहीं तो शॉपिंग के लिए, कुछ न कुछ तो करने के लिए इम्प्रेस मॉल जाते ही जाते हैं राइट, है ना? इम्प्रेस मॉल जाते हो, वो इम्प्रेस मॉल और इम्प्रेस सिटी जो है वो पहले इम्प्रेस मिल था, फैक्ट्री था. इम्प्रेस मिल था, टेक्सटाइल फैक्ट्री हुआ करता था, जहाँ पे जब जमशेदजी टाटा जब तुम लोगों के एज के थे उस समय उनके मन भी एक ड्रीम था, उनके मन में भी एक एस्पिरेशन था. We wanted to do something for India, and although he has started the textile mill in Mumbai, but after running it for the 2 years successfully, उन्होंने कहा कि कुछ तो डिफरेंट करना है, राइट? एंड वो नागपुर आए थे, क्योंकि नागपुर में ब्लैक सॉइल होता है, कॉटन प्रोड्यूस होता है, यू ऑल नो अबाउट इट राइट? एंड यहाँ पर उन्होंने वो फैक्ट्री डाली थी जो इम्प्रेस मिल था. एंड जो भी तुम देख रहे हो आज की डेट में टाटा बहुत बड़ी कंपनी है राइट, बहुत बड़ी कंपनी है, सो मेनी कंपनीज है राइट. जो आज की डेट में जो टाटा हो रहा है, टाटा में जो भी होता है उसकी जो नींव जो रखी गई थी वो नागपुर में रखी गई थी, इम्प्रेस मिल में रखी गई थी. इसी जगह से हुआ है वो सारा कुछ राइट. So if for example, and then I can go on and on about Tata Steel का भी थोड़ा बता दूंगा, लेकिन let's just look at that. If for example, if you want to work in any of the Tata companies and you tell this history, these stories, do you see, I would love to get you into Tata's, right? क्योंकि तुमने जो है कहीं पे एक इमोशनल नर्व पे तुमने हाथ रख दिया, right? So for example, if you aspire to get into Tata's, any Tata companies, go and learn about Tata's history. History is important. ना तो इंजीनियरिंग अच्छा है, मैथमेटिक्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो नीरस हो जाता है अगर तुम्हारे पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सिविक्स की ना जानकारी नहीं है और इंग्लिश एंड हिंदी की जानकारी नहीं है, राइट? वो बहुत जरूरी है. हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री जो है तुम्हारे पास एक कला देता है, आर्ट देता है टू आर्टिकुलेट. जब हिस्ट्री जानते हो तो एक आर्टिकुलेशन आता है, एक स्टोरी आता है,
राइट। एंड जब आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन आता है, वो एक कॉन्फिडेंस, जो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस कैसे होगा जब तुम बोल पाओगे उस जोन में। जब टाटा के पास जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, काम करने के लिए, अगर टाटा के बारे में बात करोगे, लोगों के बीच में आपस में बात होगा, तुम पता नहीं चलेगा कि वो इंग्लिश से मराठी में कब बात करना शुरू कर दिया और इंग्लिश से हिंदी में बात करना शुरू कर दिया, राइट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अंडरस्टैंडिंग दैट जोन, घर में बात होती है, यू हैव ए वेरी गुड सॉफ्ट कॉर्ड स्किल्स, दोस्तों के बात होती है, सॉफ्ट स्किल्स है। सो whenever that you want to go, understand that zone and then उस जोन में बात करो। जोन क्या है? जो भी इंजीनियरिंग जैसा टॉपिक है तो इंजीनियरिंग की जरूरत, खेती अगर जोन है तो खेती हो। बैंक में जाकर के अगर मान लो एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन क्रिएट करना है तुमको, या मैं जाकर के बात करना शुरू की जावा में बात करूँ बैंक मैनेजर से, है जाकर बात करके देखना, वो जावा में बात करना, सी प्लस में उस पर बात करना, डॉटनेट में बात करना, ओरेकल में बात करना, एसएपी में बात करना, बैंक मैनेजर बोलेगा भागो बाहर चले जाओ, है? डू यू अंडरस्टैंड? He will not entertain you. If he will entertain you or she will entertain you if you talk in terms of a banking as a language, right? बैंकिंग अगर में बात करते हो, जो उनका जो सेविंग है, करंट है, एडवांस है, लोन है, जो भी व्हाटएवर वेल्थ मैनेजमेंट है, जब बैंक की टर्म्स में बात करोगे तब वो बैंक के जो ऑफिसर्स है उनका इंटरेस्ट आएगा, वो तुमको बताएंगे कि हाँ हमारी प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टीसीएस में वी आर नॉट जस्ट एम्फसाइजिंग ओनली ऑन ये लैंग्वेज सीख लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर तुम बैंकिंग के कस्टमर के साथ काम करते हो तो बैंकिंग सीखना जरूरी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर के साथ काम करना है तो तुमको शॉप फ्लोर में क्या होता है, विच इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस है उसके बारे में जानना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग के जो इक्विपमेंट होता है उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर तुमको जो है फूड एंड एग्रीकल्चर के फील्ड में जाकर के काम करना है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। You understand it? All of these will actually give you the confidence. So confidence is extremely important. Okay? Through all of these that you are doing, the projects that you are doing, that you are essentially gaining a confidence. This confidence is what will actually turn around whatever the dreams and aspirations that you have. I am pretty sure all of you have come to this particular hall. All of you have participated in this particular project sessions, okay, and workshop and competition with certain dreams and aspirations. Have those dreams and aspirations. But also, dreams and aspirations, you should not be doing the dreaming alone. कभी भी अकेले ड्रीम नहीं करो। ड्रीम जो है साथ में मिल करके करो। जब ड्रीम साथ 4 लोग, 2 लोग, 5 लोग साथ में ड्रीम करते हैं, जानते वो ड्रीम जो है रियलिटी में बदल जाता है, राइट? क्योंकि रियलिटी में बदलने के लिए, ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए आपस में डिस्कशन जरूरी है। आपस में एक प्रॉब्लम को सॉल्व समझना जरूरी है। आपस में प्रॉब्लम को तोड़ने की जरूरत है, तोड़ करके फिर दोबारा सॉल्यूशन के रूप में जोड़ने की जरूरत है। विद दिस वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thanks a lot, sir. Thanks a lot. You explained the